Hello, Assalamualaikum. Welcome to Farhamur official YouTube channel. So basically, I create my channel Farhamur official for motivation for others. Especially, I created that channel to counseling my students. Today, meet with Miss Rania from Sindh University. So Miss Rania, can you introduce yourself? Walaikum Assalam, sir. I'm Rania Kashif. I'm a student of University of Sindh and I'm studying nutrition and food technology there. And I'm working with different organizations on national and international level, which are working for the betterment of youth, for the betterment of our people. And I'm trying to run my own NGO. And I think that my purpose of life is to serve my family, my people, and my nation. That's good. So Miss Rania, what is your future planning for your higher studies? Sir, my high studies plans are I want to run my own NGO. I want to do CSS commissions, and I want to do everything, each and everything, which will give me an opportunity to serve my. I'm enthusiastic to help my people, to give a change, to give a betterment. So you have many plans. You want to become a CSS officer. You want to become a. You want to open your NGO. So that's good. And I want to ask one question from you. Are you satisfied with the education system of Pakistan? And you want to give any suggestion? Sir, well, I'm not satisfied with the education system of Pakistan because I don't think that uh, they are testing ourselves and our abilities. They are just testing our memories. I think that education should be conceptual based and it should not be on a memorial base that the person who have ability to remember a lot of things will get a good grades. And I think this is unsatisfied and unfair. So what is your suggestion? How can improve our education system in Pakistan? Any suggestion from your side? Sir, I guess we do concept education. We should introduce conceptual education. Okay, you want to just say it, conceptual education should be introduced in Pakistan. Yes, sir. So if you have any issue, if you have any, if we face difficulties in university, if you have any question, you can ask me freely. Yes, sir. Sir, you are on a very great post, and teacher have a really essential role in society. So, sir, I want to ask that how you manage the risk, how you do the risk management, because तो कहते हैं ना कि जितना भारी ताज उतना भारी सर. तो सर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो रिस्क भी आते हैं. आप कैसे मैनेज. सबसे पहले बेटा तो आपको उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है. टू आइडेंटिफाई द रिस्क and then you have to analyze that risk and you have to prioritize that risk and treat the risk. Last point is to monitor this. आप किस तरीके से उस रिस्क को लेते हैं, क्योंकि कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो उसमें रिस्क लेना लाजमी होता है. मैं अगर बिजनेस की बात करूं तो टू वे टू इम्प्रूव द रिस्क मैनेजमेंट, create the right culture, because healthy communities create healthy environment. Okay, so there are basic 5 points for risk management. Identify the hazards, anything you can see in your atmosphere. For suppose आपको कोई बिजनेस ओपन करना है, आप सपोज कोई एनजीओ ओपन कर रही है, ठीक है, तो वो सबसे पहले तो आप कोई एरिया चूज करेंगे, यहाँ कोई ऐसी कोई इन्वायरमेंट तो नहीं है, कोई मसला मसाल बताखोरी तो नहीं है पाकिस्तान में. मैं पाकिस्तान लेवल पे बेटा बात कर रहा हूँ. तो सबसे पहले आप तो इन्वायरमेंट चेक करेंगे. जो बच्चे बच्चियां आपके एनजीओ में अप्लाई करेंगी तो वो इन्वायरमेंट देखेंगी. फर्स्ट पॉइंट ये है. उसके बाद डिसाइड हु मे बी harmed or how.
कोई मसला या कोई आपको हार्मफुल, तो कोई इस मतलब ऐसे मसले क्रिएट हो जाते हैं, तो इन मसलों को आप अगर हेड हैं तो ये चीजें आपको देखना पड़ेंगी। और आपको जो आपकी जो असेस है वो रिस्क में कैसे इन्वेस्ट करनी है, उन चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, आया इधर हमें ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा कि नहीं, वो सोच समझ के वो सीईओ, वो डिसीजन मेकिंग वो आपको करनी है, ठीक है। एंड मेक अ रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग्स, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उनका रिकॉर्ड बनाएं और उन मिस्टेक्स को ठीक करके आप उन रिस्क को ओवरकम कर सकती है। एंड रिव्यू द रिस्क असेसमेंट, और उसको रिव्यू करें और आइंदा ऐसी मिस्टेक्स ना हो। ये आपके क्वेश्चन का आई थिंक मेरे हिसाब से इनफ है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग else, I can answer your answer. I think it's enough for that question. You have any question, you can ask me freely. Sir, thank you so much. You have given me a very great point कि बाकी इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। एक अच्छा जी इंसान वही बिल्कुल, गलतियों से सीखता है। तो जी सर, बिल्कुल। आपने डिसीजन मेकिंग का अक्सर डिसीजन मेकिंग कैसे करें, क्योंकि जब हम डिसीजन मेकिंग किसी भी चीज पे कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी रिस्क होते हैं, और जो मोस्टली जो पॉइंट होते हैं, तो हम डिसीजन मेकिंग क्या सोच के करें, डिसीजन क्या कैसे लेना चाहिए हमें? बेटा, डिसीजन मेकिंग में यू हैव टू यूज बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन। सबसे पहले तो विजुअलाइज करें, आप सोचें मुझे क्या करना है, क्या गोल अचीव करना है, वो पहले सोचें, ठीक है। उसके बाद आप पावर बिहाइंड ईच डिसीजन, आपको ही पावर लेना है। ये नहीं कि आप अपने मैनेजर से या असिस्टेंट से आप वो कोई मशवरा लें। पावर ऑफ अटॉर्नी या पावर आपको होना लेना होगा, क्योंकि कोई भी आप अगर सीईओ हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो डिसीजन मेकिंग आप अगर अच्छे डिसीजन मेकर हैं तो आप आगे और तरक्की करेंगे, ठीक है ना। तो रिस्क टेकिंग में डिसीजन कहीं भी कभार डिसीजन डिफिकल्ट भी होता है तो लेना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद गो विथ योर गट, जो आपके पास गट है, जो आपकी इंटेलिजेंसी है, उसके थ्रू आप जाएं, मार्केट सर्च करें, ठीक है। डोंट आस्क फ्रॉम पीपल, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बन पाएंगी। फॉर राइट डिसीजन यू आर गोइंग टू बी एटलीस्ट अ लिटिल स्केयर्ड। जैसे आप बेटा यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो चॉइसेस होती है, ये डिपार्टमेंट चूज करना है हमें या ये डिपार्टमेंट चूज करना है। अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, फ्रेंड्स से पूछते हैं, ऑलरेडी आपके सीनियर होते हैं, या आपके पड़ोसी या कोई फ्रेंड होती है, तो कौन सा डिपार्टमेंट चूज करें, और इसी सोच में पड़ जाते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू है कि नहीं। जैसे मैं आपकी सिंध यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपकी आर्ट्स फैकल्टी हो गई, तो लोग कहते हैं आर्ट्स में कुछ भी नहीं है, कोई भी मतलब जो जिनको सीट नहीं मिलती तो वो आर्ट्स में चले जाते हैं। जैसे आपके इंग्लिश डिपार्टमेंट की वैल्यू है, मैं मार्केट वैल्यू बता रहा हूँ। तो ये होती है डिसीजन मेकिंग। जैसे बॉटनी, मेरी एक कजन है, उसने बॉटनी सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट, माशाल्लाह से वो चाइना से अब मास्टर्स करके आए एनवायरमेंट साइंस में, अभी वो पीएचडी पे जा रही है मलेशिया पे। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा डिपार्टमेंट, भले कोई सा भी डिपार्टमेंट यूज करो, लेकिन आप में दम है तो आप दुनिया की कोई भी टारगेट हो, कोई भी गोल हो, आप अचीव कर सकती है। ये होती है डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप डिसीजन लेंगी, जैसे मैंने पहले आपको कहा, आप स्केयर्ड होंगी। उसके बाद थोड़ा आगे चल के आप जब उस कंफर्ट जोन में जाएंगी तो आपकी डे बाय डे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगी, उस यू फील मच बेटर, and you are going to make new and wonderful friends in new environment, and you will find yourself making more and more decisions and more quickly. यही main points हैं to take decision in your life. If you have any question, another question, you can ask me. Yes, I have this question that sir, आपने अभी कहा कि हम यूनिवर्सिटी जाते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सब कह रहे होते हैं आप ये ले लें, आप ये ले लें। ये वाकई एक बहुत हद तक एक बहुत सच बात है, क्योंकि जब मतलब हम यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन ले रहे थे, हमें नहीं पता था हमारे अंदर टैलेंट क्या है, हमारे अंदर टैलेंट कुछ और था।
और हमें डिपार्टमेंट लेने के लिए कुछ और कहा गया, किसी ने बोला आप ये ले लें, किसी ने कहा आप ये ले लें। तो सर आप मुझे ये बताएं कि जब हम ऐसे कोई एक रॉन्ग डिसीजन ले लें तो उसमें हम जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे तलाश करेंगे, कैसे हम उस चीज में आगे बढ़ सकते हैं फिर रॉन्ग डिसीजन के अंदर। गुड क्वेश्चन। तो आप हमेशा, मैं अपने स्टूडेंट को भी बेटा यही गाइड करता हूँ, हमेशा एक प्लान पे मत रहें, प्लान ए पे मत रहें। आपने फॉर सपोज आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही, नो इशू। तो आप आजकल जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग दी जाती है बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है ना, तो आजकल वो ही इस लोग कामयाब हैं जो बिजनेस साइड जाते हैं। जैसे आपने अपना कहा कि मैं मेरा शौक रखती हूँ, आपने डिफरेंट एनजीओ में काम भी किया है, तो आप अपना एनजीओ ओपन करना चाहती है, तो हमेशा प्लान बी होना चाहिए इंसान पे। एक ही प्लान पे स्टिक बंदा रहेगा तो वो वहीं खड़ा रह जाएगा। तो ये अपने स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो अदर स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज साइड, तो उनको भी बेटा मैं यही गाइड करता हूँ। एंड यू हैव टू मेंटेन दी लॉन्ग टर्म फोकस। आपको बड़ी सोच रखनी चाहिए कि एक, जैसे अभी आपने स्टार्ट में आपने कहा कि मैं सीएसए एस्पायरेंट भी बनना चाहती हूँ और मैं कमीशन भी देना चाहती हूँ और मैं एनजीओ भी ओपन करना चाहती हूँ, तो किसी एक लाइन को पकड़ें, आप उसी को फोकस करें, उसी को टारगेट बनाएं, तो आप जिंदगी में इंशाल्लाह अपना टारगेट अचीव कर पाएंगी। और इसमें और आपने कहा कि हाउ टू इंक्रीज और वैल्यू, वैल्यू कैसे इंक्रीज की जाती है। अगर आप फॉर सपोज मैं कहता हूँ, अगर आप किसी डिपार्टमेंट की हेड है, आपने कोई एनजीओ ओपन कर लिया है, तो उसमें जब तक आप फ्रेंडली एटमॉस्फेयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी तो आपकी एनजीओ नहीं चल पाएगी। जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गूगल का। गूगल में जो ऑफिस, मेन ऑफिस है उनकी, वहां पे आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अपने छोटे छोटे एम्प्लॉयज की छोटी छोटी खुशियों में शरीक हों, उनको बर्थडे विशेस करें और उनको अपनी खुशी में शामिल करें, तो वो जो आपका काम 4 घंटे का होगा वो आपको 2 घंटे में करके देंगे। तो ये होती है, वो किसके हाथ में होता है, सीईओ के हाथ में। तो वो अपने लोअर स्टाफ को कैसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये आपकी जॉब वैल्यू और हाउ टू इंक्रीज अवर वैल्यू इस तरीके से इंक्रीज की जाती है। एनदर अगर मैं कुछ और पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहूँ, तो उनको, उन एम्प्लॉइज को और कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दें। अगर आप समझती हैं आपकी इसमें एनजीओ में, मैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपने कोई एनजीओ ओपन की है और उसमें आपने 10 एम्प्लॉइज आपने हायर कर लिए और उसमें से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फीमेल या मेल है, तो उसको आप मजीद बड़ी पोस्ट पे रखें, तो कि उससे क्या होगा, वो और अच्छा काम करेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको मतलब टेंशन नहीं होगी ऑफिस की, ये उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हेल्दी कंपनीज क्रिएट हेल्दी कम्युनिटीज, जैसे बाहर ममालिक में होते हैं, तो ठीक है ना, कोई रोक टोक नहीं है, तो जितना आपका फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा तो उतने ही अच्छे आप लीडर और बॉस बन सकती है। थैंक यू, थैंक यू सर सो लेकिन मच। एक यस। एक ये assumption सर कि अगर हम फ्रेंडली होंगे तो हमारा वो नहीं रहेगा, जैसे बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ओवर स्ट्रिक्ट होते हैं, तो जो है वो कि वो कहते हैं कि अगर हम फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, शरारतें करेंगे या वो अपने काम के अंदर जो है वो कोताही बरतेंगे। तो सर आप बोल रहे हैं कि वैल्यू जो है वो फ्रेंडली से बनाए, तो आप हमें बताएं कि ये जो है वो ये assumption किस हद तक सही है। देखिए, स्ट्रिक्टनेस अपनी जगह रखनी चाहिए और फ्रेंड जो फ्रैंकनेस है और फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी होनी चाहिए। मैं नहीं ये टोटल कह रहा कि आप 100% फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखें, लेकिन कभी कभार उन लोअर स्टाफ के साथ ऐसे हेलो हाय हाउ आर यू, जैसे कहते हैं क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो, इस तरीके से मैंने आपको कहा कि उनको जैसे छोटी छोटी खुशियों में उनको शरीक करना, ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट मैंने कहा। हाँ, काम अपनी जगह और ये सेलिब्रेशन जो होती है और ये जो ब्रेक होता है वो अपनी जगह, ये मेरा कहने का मकसद था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप यहाँ पे कैसे आपने, अगर आप किसी को और गर्ल्स को सजेशन देना चाहें कि घर घर बैठे आप कैसे ऑनलाइन अर्न कर सकती हैं, या एनजीओ में, मैंने काफी सुना हुआ है कि काफी एनजीओ में मतलब
कुछ गलत सलत लोग भी होते हैं, तो आप क्या सजेशन देंगी उन गर्ल्स को? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। सर सबसे पहले तो मैं ये सजेशन दूंगी कि गर्ल्स के लिए सोसाइटी डेफिनेटली थोड़ी हार्ड है। ठीक है, तो अगर हम कहीं भी किसी भी जगह पे जाएंगे तो हम ऐसे मुंह उठाकर नहीं जा सकते। जिस जगह के बारे में हमें पता ना हो हम वहां पे नहीं जा सकते। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ट्रस्टेड एनजीओ है, कुछ कोई ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रस्टेड इदारे हैं आपके, जिनके अंदर आपके कुछ ना कुछ रिलेटिव हो या जिनके बारे में आपको मालूम हो कि है, आपको देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो आपको, तो ठीक है, यू कैन गो फॉर इट। लेकिन जो है वो सर, मैं इतना ही आपको कहूंगी कि जिस जगह के बारे में आपको मालूम ना हो उससे आप थोड़ा सा दूर रहें। पहले उसके बारे में मालूम करके देखें और उसके बाद जो है वो पहले अपनी रिसर्च वर्क अपना पूरा कंप्लीट करें और उसके बाद आप जो है वो मजीद मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपका प्रोफाइल माशाल्लाह से स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान लेवल पे आप गर्ल्स की एजुकेशन को मतलब कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए कोई सजेशन वगैरह आपकी हो तो? सर गर्ल्स एजुकेशन करने का वाहिद तरीका है लिटरेसी। जब तक जो है वो मैन एजुकेशन प्रमोट नहीं होगी, मैन एजुकेशन नहीं बढ़ेगी, तब तक गर्ल एजुकेशन नहीं बढ़ सकती। आज अगर मैं इस जगह पे हूँ, इस काम पे हूँ, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्क कर रही हूँ, तो सर इसका वजह बेसिक रीजन है मेरे फादर, जो मेरी बैक पर हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। वो उनको पता है कि जो है वो एजुकेशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए, और हर इंसान का एक बेसिक राइट है ये एजुकेशन, फंडामेंटल राइट है। तो सर बेसिकली अगर हमें पाकिस्तान के अंदर खवातीन की एजुकेशन को बढ़ाना है तो डेफिनेटली हमें पाकिस्तान के अंदर मर्दों की एजुकेशन को बढ़ाना होगा। उनका माइंडसेट ब्रॉड होगा तो ये जो है पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा। ओके, मतलब आपका कहने का मकसद है कि पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों पे कितना ट्रस्ट करते हैं। तो सारी बात है ट्रस्ट की। यस सर। तो thank you so much, Miss Rania Kashif, for this amazing session. And thank you, my special assistant. Thank you so much. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.